Hello and very good evening everyone. Welcome once again to your favorite channel, that is Lukman IAS Academy. You guys are cordially welcome here, and today we proceed in our today's MCQ top in MCQs rapid series, that is 10 MCQs based on the current affairs. So here we go for 28th of December 2022. Here we go for the first question for the day. So consider the following statements about National Commission for Protection of Child Rights. NCPCR को लेकर जो है क्वेश्चन है. It is a statutory body under the Ministry of Women and Child Development. It is set up under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005. So सही जवाब हमें बताना है इसमें से correct statement कौन सा है. So it is one only, two only, both one and two, and neither one or two. Okay, so सही जवाब क्या रहेगा? C. Both the statements stands correct. Okay, so क्या है scene? Recently the National Commission for Protection of Child Rights warns NGOs about the depiction of vulnerable children for fundraising. The practice of civil society organizations using representative visuals for fundraising activities concerning development issues such as malnutrition now faces new scrutiny for NCPCR. ठीक है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स को लेकर हमेशा हमारे यहाँ जो है कोई ना कोई बवाल जो है मचा रहता है, और अब यहाँ बात आ रही है चाइल्ड जो है एक फंड रेजिंग एक्टिविटी. ओके, फंड रेजिंग फॉर द सेक ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन, उस पर जो है क्वेश्चन उठा है कि फंड रेज क्लियरली हो नहीं रहे, और जो क्लियरली रेज हो रहे हैं वो सही जगह पर यूटिलाइज नहीं किए जा रहे. Hence, as a result, the NCPCR has come in action. Okay, अगर हम बात करें what is NCPCR, so a body set up under the Protection of Child Rights Act of 2005. Works under the Ministry of Women and Child Development. तो ये जो फैक्ट्स हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलो, एक्ट का नाम तो पता है, बहुत क्लियर है, कमीशन का जो नाम है वही एक्ट का भी नाम है. ठीक है, मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. A chairperson, who can be the chairperson, is a person of eminence and has done outstanding work for promoting the welfare of children. मतलब चिल्ड्रन वेलफेयर के फील्ड में एक बहुत ही बेहतरीन काम किए हुए इंसान. ठीक है, देन 6 members. How many total members are there? 6 members. Okay, appointed by the central government. Guys, please be very specific. Members appointed by the central government, not parliament, president, governor, etc. Okay, it is the central government who appoints the members. And how many members are there? Total 6. Okay, out of which at least 2 should be women. Okay, 6 में से जो हैं 2 होनी चाहिए mandatorily women who are having experience in education and child health and juvenile justice, elimination of child labor. Then child psychology or sociology, okay, relating to the चिल्ड्रन, ये सारी चीजें होनी चाहिए. ओके, और मिनिमम 2 विमेन. राइट, देखो क्या बोला गया है, मिनिमम 2 विमेन. ओके, मैक्सिमम पर बात नहीं हुई है, मिनिमम पर बात हुई है. देन द कमीशन इंश्योर्स दैट ऑल लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स align with the child rights perspective as enshrined in the constitution are followed, and according to the UN Convention on the Rights of Children, they are also strictly followed. Okay, and the child, who is a child, as a person from 0 to 18 years of age, जो है उसको क्या definition दिया गया है? The definition of child. Okay, so hence both the statements are correct. Second question, which of the following statements is incorrect? देखो क्या बताना है हमें, incorrect statement about the Asian Development Bank. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है. Incorrect, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है ADB के लिए? Okay, so let's see. It has 68 shareholding members including 49 from the Asia and the Pacific region. China holds the largest share in ADB followed by US. देखो स्टेटमेंट पूरा क्लियरली देखो. China holds the largest share followed by the US. तो पहला स्टेटमेंट सही भी हो सकता है. ठीक है, स्टेटमेंट का पहला पार्ट सही भी हो सकता है, दूसरा पार्ट हो सकता है गलत है, followed by US. Then its voting rights are distributed in proportion with the members' capital subscriptions. And India is one of the founding members of the ADB. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को जब भी आप ऐसे
ऑप्शंस को पढ़ो तो उनको जरा उनको ब्रेक करिए, ओके, फैक्टराइज करिए। जैसे कि लेट्स से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, इट हैज 68 शेयर होल्डिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग 49 फ्रॉम द एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। हो सकता है इसका जो पहला पार्ट है वो सही हो, 68 शेयर होल्डिंग मेंबर्स, दूसरा पार्ट हो सकता है गलत हो, 49 फ्रॉम एशिया पैसिफिक, या पहला गलत हो दूसरा सही हो। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर, हो सकता है पहला स्टेटमेंट, पहला ये दूसरे स्टेटमेंट का पहला पार्ट सही है, फॉलोड बाय यूएसए, वो वाला स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो कभी भी जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, खास तौर पे आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जहां प्रेशर बहुत होता है आपके सर पे, ठीक है, और अगर आपने नॉर्दर्न या वेस्टर्न इंडिया में अगर आपका सेंटर पड़ा है, नॉर्थ इंडिया या वेस्ट इंडिया के लोकेशंस में, तो यहां तो आपके लिए सरदर्दी और बढ़ जाती है, बिकॉज इस वक्त जब एग्जामिनेशन का जो टाइम है दैट इज इन द मंथ ऑफ मई और जून। 2023 का जो एग्जाम है दैट इज 28th ऑफ मई। तो नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर या वेस्टर्न रीजन के अंदर अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, तब तो ये आपके लिए और भी स्ट्रेस भरी बात है, बिकॉज गर्मी अपने हाइट्स पर होती, राइट। और एग्जामिनेशन हॉल्स के अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो खुले होते हैं, तो जो पंखे चल रहे हैं उनसे हवा तो आती है लेकिन वो गर्म हवा होती है, और बाहर से जो धूप और गर्म हवा जो है वो भी आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको परेशान करती है काफी, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं आपके ऊपर, ओके। तो उनमें कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप ठीक से फैक्टराइज नहीं करते, क्वेश्चन का ब्रेकडाउन ठीक से नहीं कर पाते, या कई बार ऑप्शन का पहला पार्ट देखा दूसरा पार्ट पर नजर ही नहीं गया, ओके। तो इन चीजों की वजह से कई बार सही जानकारी वाले क्वेश्चंस भी आप गलत कर जाते हो, जो फाइनली इंपैक्ट देते हैं आपके रिजल्ट पर, ओके। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें, उन पर नजर रखे रहे हमेशा। सो इसका जब सही जवाब क्या होगा अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है, बी, ओके। बाकी का ए, बी और सी जो स्टेटमेंट्स है वो सही हैं, बी इज रॉन्ग, ओके। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 68 शेयर होल्डिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग 49 फ्रॉम द एशिया एंड द पैसिफिक। Statement 2 is incorrect. Japan and United States each hold the largest proportion of shares. Okay. Followed by China, India, Australia, so on. Right. It is Japan, not China, followed by US. Okay. Statement 3 is also correct. Modeled closely on the World Bank and has similar weighted voting system where votes are distributed in proportion with the members and the capital subscriptions. Then statement 4 is also correct. We are one of the founding members of the ADB. Okay. So next, question number 3. Which of the following statement is correct about Dhanu Yatra? Recently seen in news. Dhanu Yatra के बारे में बताना है. It is a pilgrimage destination in India and is organized every year by the government of Jammu and Kashmir. चलो पहला statement. दूसरा क्या है? A Hindu festival associated with Lord Jagannath. Then Yatra to Maharashtra to honor Vithoba. और लास्ट वन, एनुअल ड्रामा बेस्ड ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सबसे इजी है, तो सही आंसर इसका क्या है, डी, दैट इज एनुअल ड्रामा बेस्ड ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। ओके, तो अगर हम इसके फैक्ट्स की बात करें तो ओडिशा में हो रहा है ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, यानी कि किसी जो है स्टेडियम में या किसी ऑडिटोरियम में नहीं हो रहा है, खुले में हो रहा है ये। ओके, ओपन एयर मतलब एक ओपन ग्राउंड में हो रहा है। फिर उसके अलावा स्प्रेड अक्रॉस 8 किलोमीटर एरिया, 8 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। ठीक है, कहां पर, बरगढ़ म्युनिसिपैलिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन किया गया है। सो वंस अगेन अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो ओपन एयर, लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर जो है वो कहां है, इंडिया में, ओडिशा। ठीक है, क्या नाम है, धनु यात्रा। ओके, या धनु जत्रा भी कह रहे हैं इसे ओडिशा लोकल लैंग्वेज के अंदर। ओके, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द अमृत भारत स्कीम। ओके, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इट एम्स to the preparation of charging stations for electric vehicles in India, और second, it is implemented by the Ministry of Petroleum and Natural Gas। देखो ऑप्शन से ही समझ में आ जा रहा है कि दोनों गलत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्या करेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी
ऑप्शन जब निकल कर आते हैं फैक्टर्स ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन, तब क्वेश्चन बनता है कि यार अब क्या करें। हो सकता है दोनों में से कोई एक सही हो, दोनों का आपस में कोई इंटरलिंक तो बन नहीं रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, नन ऑफ देम। ओके, द स्कीम एम्स एट द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान फॉर द रेलवे स्टेशन, नॉट द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशंस। ओके, एंड इट स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज अब जब रेलवे की बात हो रही है तो फिर मिनिस्ट्री कौन सी होगी? वहां पर मिनिस्ट्री भी हो जाएगी रेलवे। ओके, तो ये कहानी रही हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन फॉर द डे, द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन द कॉन्सोनेंस विद द यूनियन कैबिनेट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, orders of the delimitation commission cannot be questioned in any court of law. Third, orders of the delimitation commission once placed can be modified by the Lok Sabha with a special majority. तो correct statement इनमें से कौन सा है? 1 only, 2 only, 1 and 3 या 1, 2 and 3? तो जवाब क्लियर है, सेकेंड, दैट इज बी ओनली। बाकी के सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं। कैसे? The delimitation commission is appointed by the president, yes, but it works in consonance with not the union cabinet but with the election commission of India. And yes, once again, its orders, its judgment cannot be questioned in any court. ध्यान रखना, इंडिया में 2 ही ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके जजमेंट्स पर कहीं पर भी सवाल नहीं उठ सकता। उनमें से एक है डिलिमिटेशन कमीशन, दूसरा है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। Okay, delimitation commission, which is not a constitutional body, whereas the interstate river water dispute tribunal, it is having reference in the constitution under article 263. Okay, तो ऑप्शन क्या सही हो गया हमारा? ऑप्शन बी। ओके, ये बात हमारी जो है वो सही हो गई। अब अगर हम बात करें डिलिमिटेशन कमीशन के कॉम्पोजिशन की, तो इसमें कौन कौन है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज साहब हैं हमारे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जहां पर भी डिलिमिटेशन हो रहा है। अब ये क्वेश्चन निकल के कहां से आया है? डिलिमिटेशन का अभी जो है सिनेरियो कहां चल रहा है? हमारे असम स्टेट के अंदर चल रहा है। तो असम स्टेट के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी इसका हिस्सा बने रहेंगे। ओके, सो मूविंग अहेड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In a hyper-globalized world, nations become entirely self-reliant. आत्मनिर्भरता की बात हो रही है भाई साहब। A major pandemic or natural calamity can disrupt a hyper-globalized world order. तो hyper-globalization एक टर्म है जो न्यूज में है, तो सही जवाब इसका क्या होगा? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. तो आइए देखते हैं सही जवाब इसका क्या है। तो आंसर है बी, that is 2 only. A major pandemic or natural calamity can disturb a hyper globalized world order. तो ये देखते हैं हाइपर ग्लोबलाइजेशन मतलब है क्या। तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन okay, so hyper globalization is the concept that believes that globalization is happening and there is an emergence of homogeneous global culture. Okay, so in a hyper globalized world, countries produce things in which they have comparative advantage and import those others can make at lower opportunity cost. For example, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया प्रोड्यूस पाम ऑयल एंड यूक्रेन एंड रशिया प्रोड्यूस सनफ्लावर ऑयल। देखो दोनों यूक्रेन और रशिया एक साथ हैं, वो भी किसी चीज की प्रोडक्शन में, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, तो ये है हाइपर ग्लोबलाइज्ड टर्म, राइट? सो वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Widening tax base and increasing digital transactions in the economy could boost direct tax collection. Then state with the highest population has the highest direct tax collection in India. तो इस हिसाब से यूपी हो जाना चाहिए, लेकिन जवाब गलत है यहां पर। ऑप्शन की अगर हम बात करें 1, 2, both 1 and 2, neither 1 and 2, तो ऑप्शन क्या होगा? ए, दैट मीन्स 1 only. ओके, सो जब हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस की, तो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट विद द हाईएस्ट शेयर इन दी टोटल डायरेक्ट कलेक्शन 2021-22 का डेटा है महाराष्ट्र 37.1%, फॉलोड बाय दिल्ली 12.6%, देन कर्नाटका 11.9%, तमिलनाडु 6.3%, गुजरात 5.1%। ओके, तो देखा जाए यूपी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन उसमें लिस्ट में भी नहीं है, तो डायरेक्ट टैक्स का पॉपुलेशन से स्टेट की कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
सो अब स्टेट और यूटीज विथ हाईएस्ट डायरेक्ट टैक्स रेट ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा है, कलेक्शन तो हम देख रहे हैं कहां है सबसे ज्यादा, लेकिन ग्रोथ के मामले में, ओके, स्पीड के मामले में आगे कौन है, तो इट इज नन अदर देन तेलंगाना, देन फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, कर्नाटका, राजस्थान एंड गुजरात। तो गुजरात आप देख पा रहे हो दोनों ही जगह पर है, कलेक्शन में भी और ग्रोथ में भी, ठीक है, तो सही जा रहा है मतलब, ओके। Moving ahead, question number 8. Emperor penguins are mammals which are commonly found in Antarctic region. Penguins huddle together to escape wind and conserve warmth in extreme cold conditions. Then penguins are viviparous in nature. तो सही जवाब क्या होगा इसका, अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, so it will be B, that is 2 only. Okay, so emperors are the largest of all penguins. An average bird stands some 45 inches tall. The flightless animals lives on the Antarctica ice and in the freezing surrounding waters. Penguins employ physiological adaptation and cooperative behaviors in order to deal with an incredibly harsh environment where wind chills can reach to -76 degree Fahrenheit. Okay, so ये है हमारी penguins की कहानी. Okay, male emperors keep the newly laid eggs warm, but they do not sit on them. Okay, as many other birds do. तो ये एक चीज, ये अलग कहानी है. और एक when female penguins return to the breeding site, they bring a belly full of food that they require for the newly hatched chicks. Right? So ये एक उनका अगर हम देखें तो बहुत ही वंडरफुल ड्यूटी है. अगर आप देख रहे हो कि खाना लेकर आती है मदर अपने पास, ठीक है, अपने साथ वापस जब वो आती हैं, ठीक है, ब्रीडिंग साइट पर. So now next question. Question number 9. Tourism is part of the concurrent list in the 7th schedule of the Indian Constitution. Then overall rejuvenation and modernization of the tourist places comes under the ambit of the Union government. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. सही जवाब क्या होगा इसका, 1, 2, both 1 and 2, neither 1 and 2. तो अगर हम जवाब की बात करें, so the option will be D, neither 1, neither 2. कैसे? Tourism is not listed in any of the 3 list, चाहे वो यूनियन हो, स्टेट हो, चाहे कॉन्करेंट हो, ठीक है. सो ये एक फैक्टर है जो दिमाग में रखना है, यानी कि ये कौन से लिस्ट में आ रहा है, रेसिड्यूरी लिस्ट, जो बच गया है ये उसमें जाएगा और किसी चीज में नहीं जाएगा. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. A slower growth rate of global expansion and economic activity will negatively impact trade prospects for export-oriented countries. Second, lowering interest rates and pumping cash into the banking system is a measure to kindle economic growth. So once again, basic economics question, 1, 2, both 1 and 2, neither 1 and 2. So answer is clear cut here. C, that is both the statements are correct. That is, a slower growth rate of global expansion and economic activity will negatively impact the prospects for export-oriented countries. And lowering interest rates and pumping cash into the banking system is a measure for this type of economic crisis. Okay, so options यहाँ पर आपके सामने हैं सारे, ठीक है. So guys, that's it with the day for the rapid series of 10 MCQs dose based on the current affairs. तो आज के लिए इतना ही. Okay, so guys, please do not forget to like the video and do provide your valuable feedbacks as well in the comment box. See you all soon tomorrow morning's DCS session. Till then, study well, bye bye, take care and Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now.